everyone. I, SP Yadav, welcome you all at IES Masters GATE Computer Science YouTube channel. My dear student, in continuation of Master Concept series, today I am going to start Integral Calculus part number 1, Definite Integration and Properties. Student, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे some important definite integration properties and problem based on that. Students, let us discuss about what is the definite integration. The formal definition of the definite integration is given a function f of x that is continuous on the interval a comma b, we divide the interval into n sub-intervals of equal width delta x and form each interval, choose a point xi, then the definite integral of fx from a to b is integration a to b fx dx is equivalent to summation f of xi delta xi I equal to 1 to n delta xi approaching to 0. यहां स्टूडेंट डिस्क्रीट सम की हेल्प से रीमन सम को समझाने की कोशिश की जा रही है. मैं बताता हूं आपको, आप समझ जाएंगे ये एक्चुअल में है क्या. स्टूडेंट, सपोज दैट दिस वन इज माय y एक्सिस, करेक्ट. This one is x-axis. There is a given function y equal to fx. Y equal to fx. In between a to b. In between a to b. Integration to be found in between a to b. Correct? Student, the given interval is a to b. Divide in n sub intervals. Divide it into n sub intervals like this. First one, second one, third one, fourth one, fifth one, ith, and so on, nth one. Correct? स्टूडेंट, हम लोग यहां बात करते हैं ith इंटरवल ले रहे हैं. दिस वन इज डेल्टा x, करेक्ट. एंड हाइट एट दिस इंटरवल, हाइट ऑफ फंक्शन इज f ऑफ x, करेक्ट. स्टूडेंट, अगर हम इस स्ट्रिप की एरिया की बात करें, इस स्ट्रिप की एरिया की बात करें, तो इट वुड बी डेल्टा xi इंटू f ऑफ xi, करेक्ट. इसे हम क्या मानते हैं, ith इंटरवल. वही यहां पे स्टूडेंट कहा जा रहा है, अगर मैं जितने भी इंटरवल हैं सब के लिए f ऑफ xi डेल्टा xi का सम कर डालें, ठीक है. कहां से स्टार्ट करके, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n तक. बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, इफ डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0, डेल्टा x किसको अप्रोच कर जाए, 0 को, तो यहां पे एक स्ट्रिप दूसरे स्ट्रिप को स्टूडेंट टच करना शुरू कर देगी. मतलब इसके बाद वाली स्ट्रिप x f ऑफ x, x f ऑफ x, x f ऑफ x, x f ऑफ x, इस तरीके से स्टूडेंट इंटीग्रेशन यहां पे जो होगा that is simple Riemann sum of fx into dx. आई बात समझ में. so this would be a Riemann sum of Riemann sum of x f of x in between
a to b. This is all about डेफिनिट इंटीग्रेशन. ये डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या देगा? कुछ वैल्यूज को देगा. अगर हम स्टूडेंट अज्यूम करें यहां पे डेफिनिट इंटीग्रेशन में अज्यूम करें a to b fx dx and the integration of f of x is g of x plus c. Correct? Integration limit a to b, then substitute the values of upper limit and value of upper limit and lower limit g of b plus c minus g of a plus c. C gone cancelled. So the final value of definite integration is g of a minus g of b minus g of a, where a and b are lower limit and upper limit of the given integration. Correct, my dear? So the final value of given definite integration f of x dx, that is equal to g of b minus g of a. करेक्ट? अच्छा, चलो ये तो बात हुई स्टूडेंट फंडामेंटल्स ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन. अब हम आते हैं स्टूडेंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रॉपर्टी इन द डेफिनिट इंटीग्रेशन इज किंग्स प्रॉपर्टी. डेफिनिट इंटीग्रेशन इज किंग्स प्रॉपर्टी. आई बात समझ में? अभी किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट? इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू a to b f of a plus b minus x dx. ये स्टूडेंट अगर हम यहां पे प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं. लाइक सपोज दैट माई इंटीग्रेशन I इक्वल टू a to b f of a plus b माइनस x. आई बात समझ में? dx. लेट्स अज्यूम दैट लेट a plus b माइनस x इक्वल टू t. हमने क्या अज्यूम कर लिया स्टूडेंट? इसको t अज्यूम कर लिया. आई बात समझ में? इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में 0 0. This implies that minus dx equal to dt. क्या आ जाएगा? Minus dx equal to dt. Student, when x equal to a, x की lower limit कितना है? a. Put x equal to a. This implies that t equal to a minus a gone cancelled equal to b आ गया. आई बात समझ में? When x इक्वल टू b, जब हम अपर लिमिट लेंगे x की तो t की अपर वैल्यू देखेंगे कितनी होगी? b माइनस b कैंसिल हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट t इक्वल टू a. अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन नाउ दिस इंटीग्रेशन कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ f ऑफ t. आई बात समझ में? सो I इंटीग्रेशन I इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इज b, upper limit is a, f of t, and the value of dx is minus dt. Minus dt. Students, this can be written as equal to a to b f of t dt. अभी यहां पे जरा देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जरा देखो a to b, इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल था. ठीक है? और जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू क्या आई? a to b f of t dt. आप देखो गिवन में था, एक मिनट, यहां गिवन था इंटीग्रेशन a to b f of x dx, that is equal to a to b f of
a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके बराबर है। और हमने इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर दी, a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। आप t की जगह x रख लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वेरिएबल डजंट मैटर, आप y लिख लो, आप यहां x लिख लो। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू a टू बी f ऑफ x dx, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ हुआ? Either you can evaluate a to b fx dx or evaluate a to b f of a plus b minus x dx. This one is known as King's property. Student, according to my personal experience, हमने पूरा प्रीवियस ईयर एनालाइज किया हुआ है और हमने देखा ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आई बात समझ में? इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसका एक स्पेशल केस देखिए, एक स्पेशल केस बहुत पूछता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। स्पेशल केस में मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप बोल रहे हो इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx होता है इफ a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू a। मैं a की वैल्यू क्या ले लूं स्टूडेंट? 0 ले लूं, b की वैल्यू a, देन इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ, यहां वैल्यू हम ले लेते हैं स्टूडेंट a माइनस एक्स डी एक्स। एक a की वैल्यू 0 हो गई, दूसरे b की वैल्यू a हो गई। तो स्टूडेंट इसका मतलब है इफ इंटीग्रेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग विथ a, देन यू कैन रिप्लेस x by a minus x where a is the upper limit of given integration। आई बात समझ में स्टूडेंट? हम किंग्स प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ले सकते हैं। इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप डायरेक्टली शॉर्टकट के थ्रू इवैल्यूएट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ध्यान रहे, आपको देखना है यहां भी फंक्शन होना चाहिए, सेम फंक्शन यहां होना चाहिए, और प्लस में f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर ये फॉर्म दिख जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। देखो कैसे, इसे मान लेते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। आई बात समझ में? लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट? इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ, you can replace x by a plus b minus x whole divided by f of a plus b minus x plus, you can replace it by f of a plus b minus, students, a plus b minus x of dx. Simplify it. I equal to integration a to b f of a plus b minus x whole divided by f of a plus b minus x plus a gone cancelled with a, b gone cancelled with a, minus minus plus, this would be f of x dx. Student,
make it equation number 2. This one is the first equation, this one is the second equation. Here student, numerator part is fx, here numerator part is f of a plus b minus x, but denominators are same, fx plus f of a plus b minus x, f of a plus b minus x plus fx. Adding first and second, adding first and second. Adding first and second. लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे, इट्स 2i, राइट साइड में ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर सेम, सो f of x प्लस f of a plus b minus x whole divided by f of x plus f of a plus b minus x dx. Numerator and denominators are same. Now these gone cancelled. 2i equal to integration a to b dx. Students, 2i equal to b minus a, so I equal to b minus a by 2. This one is the right answer. आई बात समझ में स्टूडेंट्स? सपोज स्टूडेंट्स वी हैव अ क्वेश्चन, question is about what would be the integration 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x. Then students you can write it directly pi by 4. कैसे स्टूडेंट? आंसर इसका होगा पाई बाई 4. हाउ? दिस वन इज f of x, दिस इज ऑल्सो f of x. cos x कैन बी रिटेन एज f of x. कैसे? साइन ऑफ 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस x लिख देते हैं. 0 टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन साइन x plus sine of 0 plus pi by 2 minus x. After simplification it would be cos x. Now it is f of x, f of a plus b minus x. So this equal to student b minus a by 2, that is equal to pi by 4. Pi by 2 minus 0 by 2, pi by 4. आई बात समझ में? सो द डायरेक्ट आंसर इज पाई बाई 4. करेक्ट स्टूडेंट्स? लाइक स्टूडेंट्स वी हैव अ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी आस्क्ड इन गेट एग्जाम. हम डिस्कस करते हैं. गिवन इंटीग्रेशन इज पाई बाई 6 to pi by 3 dx whole divided by 1 plus root over tan x. This one is the given function for which integration to be found. So student, let's simplify it. Pi by 6 to pi by 3. Tan x can be written as sin x by cos x. This would be root cos x upon root cos x plus root sin x. After simplification, it would be pi by 6 to pi by 3 root cos x upon root cos x plus root sin x dx. आई बात समझ में? बट स्टूडेंट्स अगर हम यहां पे देखें तो लिख सकते हैं इसको I इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट ओवर कॉस ऑफ
पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 a plus b minus x. I applied King's property of integration. Root over cos of pi by 6 plus pi by 3 minus x plus root over sine of pi by 6 plus pi by 3 minus x whole integration dx. हमने क्या अप्लाई किया स्टूडेंट? यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी. डन. यूजिंग किंग्स प्रॉपर्टी. simplify it. Now your integration I equal to integration pi by 6 to pi by 3. स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 की, आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट पाई प्लस 2 पाई दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2. करेक्ट. सो मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट इन न्यूमरेटर cos पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज cos pi by 2 minus x root over whole divided by root over cos of pi by 2 minus x plus root over sine of pi by 2 minus x dx. Done students. I equal to pi by 6 to pi by 3. This one is sin x whole divided by cos x plus sin pi by 2 minus x cos x. ये हो जाएगा sin x root over cos x dx. Student, in the given integration when I simplified, I got I equal to pi by 6 to pi by 3 root cos x upon root cos x plus root sin s. Let's make it equation number first. इसे क्या बना देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट. यहां पे अगर देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिनोमिनेटर्स आर सेम. डिनोमिनेटर में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बोथ आर सेम. डिनोमिनेटर में टर्म सेम है. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 रूट साइन एक्स plus root cos x whole divided by root sin x root cos x dx equal to integration pi by 6 to pi by 3 dx. ये कितना हो गया स्टूडेंट? 1. This gone cancelled with numerator, gone cancelled with denominator. Done. So student, final answer, this implies that I equal to 1 by 2, 2i था, I equal to pi by 3 minus pi by 6. pi by 3 में से pi by 6 माइनस किया, pi by 6 आ गया. Final answer is pi by 12. Final answer is pi by 12. Option C is the right choice. आंसर सी इज द राइट चॉइस. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किंग्स प्रॉपर्टी यूज कर लो या डायरेक्ट अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एक लाइन में इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, और इसी का सब्सटीट्यूट होता है एफ एक्स
upon fx plus f of a plus b minus x dx equal to b minus a by 2. Let's take one more question. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछा गया था, बहुत आसानी से बता सकते हैं. इंटीग्रेशन I equal to 2024 to 2025 integration root x whole divided by root x plus रूट ओवर. स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा करेक्शन मैं करता हूं. ये 2024 प्लस 2025 ये हो जाएगा 949 4049. यहां पे होना चाहिए 49. हाँ, तभी ये पॉसिबल होगा. डन, कोई दिक्कत नहीं. 4049 minus x dx. Student, I already told you integration a to b f of x upon f of x plus f of a plus b minus x dx equal to b minus a by 2. आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट when this one is satisfying fx, this should be f of a plus b minus x. ठीक है. So student, your integration I equal to 2024 to 2025 root x matching with this one, root x matching with this property plus root of lower limit 2024 plus upper limit 2025 minus x. Yes, this one is matching with given property. Integration dx can be written as 2025 minus 2024 divided by 2. Answer is 1 by 2. So the final answer is, students, half. ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जाएंगे. आई बात समझ में? वन मोर क्वेश्चन. देखो, मैं इसको बहुत आसानी से कर सकता हूं स्टूडेंट्स. अगर आप मेरे को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को बोलोगे तो सबसे पहले मैं इस प्रॉपर्टी को रिकॉल करूंगा. इंटीग्रेशन a to b f of x अपॉन f of x प्लस f of a plus b minus x dx. Correct? This can be written as b minus a by 2. क्या ऐसा लिख सकते हैं? fx, let us assume that the fx is 2 power sin x. a की वैल्यू 0, b की वैल्यू pi by 2, f of x is 2 power sin x. This is your f of x. This one is 2 power sin x plus 2 power. स्टूडेंट sin x यहां भी होना चाहिए, बट x के प्लेस पे लोअर लिमिट 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस x, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वुड बी cos x. कोई चेंज नहीं आया फंक्शन में, हमारा फॉर्म भी मिल गया. सो द आंसर ऑफ दिस इज, स्टूडेंट, पाई बाई 2 माइनस 0 बाई 2, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4. b, that is pi by 2, a minus 0 by 2 pi by 4. So the right answer is pi by 4. Student, this is all about King's property. ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी की एक स्पेशल कंडीशन भी मैंने आपको सिखाई, जहां पे b माइनस a बाई 2 करके आप इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं. ठीक है, और किंग्स प्रॉपर्टी को भी हमने सिखाया. स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लासेस आई ऑलरेडी डिस्कस्ड with you concept of infinity and indeterminate form, concept of limit, differentiability.
Lagrange's mean value theorem, inflection point, area bounded by curve, and in today's lecture पार्ट 1 हमने डिस्कस किया डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी उसमें अभी मैं कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करूंगा। आई होप प्रीवियस जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी आपने देख रखे होंगे। स्टूडेंट्स अगर आप सारे वीडियोस को वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द लेक्चर प्लान देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट उन टॉपिक्स पे बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा जो गेट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्दर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल डिस्कस सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, देन फर्दर आई विल फॉलो द सेम लेक्चर प्लान mentioned in this list, and finally we will discuss in the last I will discuss probability. Student, thank you so much, have a good day, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।